Hello students, we are doing introduction to microeconomics जिसके अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. What causes the economic problem? What is economics? What are the three central problems of an economy? Opportunity cost, marginal opportunity cost, PPC, production possibility curve, its properties, fuller utilization and underutilization of resources, that is production on PPC, production inside PPC, attainable, unattainable points on PPC, that is production inside or on the PPC and production outside the PPC. नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर रहे हैं. उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे 6 मार्कर. विल डू वन क्वेश्चन 6 मार्कर, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. और वो पॉइंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पेज नंबर 14, पेज 14, क्वेश्चन नंबर 34, 6 मार्क का क्वेश्चन. वैसे तो ये चैप्टर अराउंड 4 मार्क्स में आता है, तो हाउ कम 6 मार्क का क्वेश्चन? स्कूल एग्जाम, स्कूल टेस्ट, कॉमर्स वाला के जो टेस्ट होंगे उसमें 6 मार्क का क्वेश्चन कंसिडर हो सकते हैं. फाइनल में ये चैप्टर 4 मार्क्स का ही है. यूजिंग द डेटा फ्रॉम शेड्यूल आंसर द फॉलोइंग. कॉम्बिनेशन ABCDE. Page 14, question 34. Combination ABCDE. Good eggs 0 1 2 3 4. Good Y 10 9 7 4 and 0. Plot PPC. PPC को प्लॉट करना है. सो लेट्स प्लॉट इट. ग्राफ. ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स यूनिट्स. ऑन वाई एक्सिस इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई यूनिट्स. द स्केल ऑन बोथ द एक्सिस वुड बी सेम. जैसे 1 यूनिट डिफरेंस है, 2 डिफरेंट यूनिट्स है, स्केल दोनों का सेम रहेगा. सो फ्रॉम 1 का गैप हम रखते हैं एंड इन y more of the axis because we have 10 units. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, 0 10, this is the point, this is point A. 1 and 9, this is point B. 2 7, 2 and 7, this is 2 and this is 7. This is point C. 3 4. This is point D and 4 0. This is point E. Let's join it. Perfect. This is PPC. Label what do the points on the curve indicate? A, B, C, D, E या कोई और पॉइंट this and this. ये क्या पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं? ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट का आंसर. पॉइंट्स ऑन PPC indicates the fuller utilization
of resources, full stop. Thus, that's it. Points on PPC indicates the fuller utilization of resources. कौन से पॉइंट्स हैं वो? A, B, C, D and E. C part. Label a point F inside the curve. एक point F inside the curve कहीं भी. Let it be here. F. What does this point indicate? This is A, this is B, C. Point F is inside the PPC, comma, it indicates underutilization of the given resources. D. Label a point G outside the curve. What does this point indicate? G curve के बाहर कहीं भी बना लीजिए. Here. What does this point indicate? D. Point G is outside the PPC, comma, it indicates unattainable production. It indicates unattainable production within the given resources. जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनसे यहाँ तक प्रोडक्शन नहीं हो सकती. What must be done so that economy can attain point G? G पे पहुँचने के लिए इकोनॉमी को क्या करना होगा? Economy should increase the level of resources. Economy should increase the level of resources to produce at point G. इसका मतलब F पॉइंट हो गया 19 है ना, F हो गया 18. हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 9 कर सकते हैं बट 8 कर रहे हैं, 1 कर सकते हैं 1 कर रहे हैं. 1 यूनिट ऑफ I इज लेस प्रोड्यूस्ड. और G पॉइंट हो गया 212. 27 था यहाँ 212, मतलब 5 यूनिट वाई के और प्रोड्यूस करने हैं. उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे. अगर आप इसकी एमओसी कंप्यूट करोगे तो आप देख सकते हैं वो इंक्रीज ही करेगी क्योंकि ये कनकेव बनी है. नेक्स्ट पॉइंट 9th, पेज नंबर 9, रोटेशन ऑफ पीपीसी. पीपीसी रोटेट कब करती है? जब भी किसी एक कमोडिटी के रिसोर्सेज चेंज हो. अगर गुड के एक्स के रिसोर्सेज बढ़ गए या गुड एक्स के रिसोर्सेज कम हो गए, वाइस वर्सा, उन दोनों केसेस में पीपीसी रोटेट करेगी. पेज नंबर 9, रोटेशन ऑफ पीपीसी. It refers to the situation when production of one commodity can be changed due to change in the resources of that commodity. Production of one commodity, एक commodity की production change हो रही है क्योंकि एक ही commodity के resources change हो रहे हैं. So सबसे पहले good X. First point, when resources of good X changes,
good y, good x. This is the PPC. x के रिसोर्सेज बढ़ गए, x के रिसोर्सेज बढ़ गए, सो x की पोटेंशियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं वो बात की बात है, वो तो हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे या नहीं। अभी के लिए x की प्रोडक्शन यहाँ हो सकती थी, यहाँ पे पहुँच गई। PPC has been rotated to PPC1. सिमिलरली अगर x के रिसोर्सेज कम हो गए, x के रिसोर्सेज कम हो गए तो उसकी पोटेंशियल प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आप x की प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। सो initially it was PPC. With the increase in the resources of good X, PPC 1. With the decrease in the resources of good X, it is PPC naught. Similarly, अगर y के रिसोर्सेज चेंज हो, when resources of good y changes, this is good y, this is good x, and this is PPC. This is the maximum potential production of good X, and this is the maximum potential production of good Y. X की प्रोडक्शन, X के रिसोर्सेज बढ़, सॉरी X के रिसोर्सेज अनचेंज्ड, Y के रिसोर्सेज बढ़ गए। That means now more can be produced of Y, but same of X. और अगर y के रिसोर्सेज कम हो गए, लेस विल बी प्रोड्यूस्ड ऑफ y, सेम कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ x, PPC 0, PPC not. I think I have made my point clear. This is figure 1. This is figure 2. डायग्राम बनाइए, मुझे अराउंड हाफ पेज की एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉ लाइक वन हेयर, ताकि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, और वन हेयर इसकी एक्सप्लेनेशन इधर, वन हेयर इसकी एक्सप्लेनेशन इधर। अगर आप बड़ा लिखते हैं सो यू हैव दिस पेज। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका जो मटेरियल है वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ताकि बात लास्ट तक, +1 के लास्ट तक आपके पास ये प्रॉपर नोट्स मेंटेन्ड हो। डोंट राइट इन कॉपी, राइट डाउन इन नोट्स। Write down the explanation. In figure 1, comma, resources of good Y remains unchanged. Resources of good Y remains unchanged, and there is change in the resources of good X, and there is change in the resources of good X.
full stop. PPC is the initial production possibility curve. PPC is the initial production possibility curve. Full stop. Due to increase in the resources of good X, due to increase in the resources of good X, PPC rotated to PPC1. PPC rotated to PPC1. This is a rightward movement of PPC. This is rightward movement of PPC. Full stop. Similarly, PPC will be rotated to the leftward. PPC will be rotated to the leftward. That is PPC naught, PPC 0. That is PPC 0. Now the potential production of good X has been reduced to, now the potential production of good X has been reduced to OX0, OX0, full stop. ये हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. Change the paragraph. In figure 2, change the paragraph. In figure 2, comma, PPC will be rotated upward. PPC will be rotated upward to PPC1, to PPC1, full stop. It is due to the increase in the resources of good Y. It is due to the increase in the resources of good Y, full stop. The potential production of good Y has been increased to OY1. The potential production of good Y has been increased to OY1. Full stop. Similarly, comma, PPC will be rotated downward to PPC0. PPC will be rotated to downward, या PPC will be downward rotated to PPC0, to PPC0. When the production of good Y, when the resources of good Y, has been reduced, full stop. Here, comma, the resources of good X remains unchanged. The resources of good X remains unchanged.
full stop. This is what rotation of PPC called. This is how the PPC rotated. What is rotation of PPC? When the resources of one good changes and hence the potential production. 9th पेज पे लिखा हुआ है, it refers to the situation when dash production, वहाँ पे कर दीजिए potential production of the commodity. एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल तो आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये पॉइंट बुक्स में है नहीं बट पेपर में आ सकते हैं. जैसे ये पीपीसी है, एक्स के रिसोर्सेज बढ़ गए और वाई के कम हो गए, तो वाई के कम हो गए और एक्स के बढ़ गए, ये नई पीपीसी बन जाएगी. क्या पीपीसी इंटरसेक्ट कर सकती है? आपका क्वेश्चन है, कैन पीपीसी इंटरसेक्ट? Yes, PPC can intersect with each other when resources of one good increases and on the same time resources of other commodity decreases, or this X के resources कम, Y के ज़्यादा. resources shift नहीं हुए हैं, increase decrease हो गए. Moving on. पेज नंबर 10. चलिए पहले एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं. ये जो यहीं पर लिखेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी, यहीं पे क्वेश्चन लिख लीजिए. इफ यू वांट टू राइट ऑन योर रजिस्टर यू मे. इट्स अ स्मॉल 3 मार्कर क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन. कैन 2 PPCs intersect? Question mark. 3 marker. Can 2 PPCs intersect? Question mark. Answer. Yes. There is a possibility of intersection of 2 PPCs. Full stop. It is possible when resources of one good, say X, increases and on the same time resources of other good, say Y, decreases. हमने x के रिसोर्सेज बढ़ाए हैं और y के कम किए हैं, ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है, तभी मैंने लिखा है से x. से मीन्स लेट इट बी x. फॉलोइंग फिगर will explain this point more clearly. See, ये डायग्राम बना लेंगे अब. 3 मार्कर है तो डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. दिस इज ऑल फॉर 3 मार्क्स. दिस इज योर पीपीसी. Here we have is good y and here we have is good x. y के रिसोर्सेस कम हुए हैं और x के रिसोर्सेस बढ़े हैं. सो y की प्रोडक्शन, पोटेंशियल प्रोडक्शन कम होगी. पहले आप y 1000 प्रोड्यूस कर सकते थे, अब 900 कर सकते थे. द पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ y हैज बीन रिड्यूस्ड एंड पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ x हैज बीन इंक्रीज्ड. PPC is now PPC1
एंड दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट. लेट इट बी लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PPC1. Clear everyone? Let's move to the next topic. Shifting of PPC, page number 10. It refers to the situation when production of both commodities can be changed. यहाँ पे लिखे ना प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड. जब वर्ड कैन आ जाता है तो वो पोटेंशियली है. पिछले पे भी देखिए कैन ही लिखा था. So production can be changed is nothing but the potential production due to change in the resources of both the commodities. अगर दोनों commodities के resources बढ़ जाएं या दोनों commodities के resources कम हो जाएं simultaneously at the same time, उस केस में PPC रोटेट नहीं होगी, PPC शिफ्ट करेगी. पहले हम दोनों के रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं. ए, रिसोर्सेज ऑफ गुड X एंड गुड Y इंक्रीजेस. अगर दोनों के रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे, you may draw along with me. Now this is the PPC, the potential production of X, the potential production of Y, and this is the potential production of an economy. Here we have is good X and here we have is good Y. गवर्नमेंट ने कॉमोडिटी एक्स बनाने में, लेट इट बी, ये पीपीसी इकॉनमी की नहीं है, ये पीपीसी मेरी है. मेरा बिजनेस टी शर्ट्स का है और मैं अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स का. सो दिस इज माई पोटेंशियल प्रोडक्शन. गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी टी शर्ट्स बनाने के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर रॉ मटेरियल सस्ता कर दिया गया क्योंकि टैक्स कम लगना शुरू हो गया. इन बोथ द केसेस अब मैं दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ. मेरी सेम इन्वेस्टमेंट पे प्रोडक्शन दोनों की बढ़ सकती है. सो PPC विल बी शिफ्टेड टू द राइट. द प्रोडक्शन ऑफ X कैन बी इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ Y कैन बी इंक्रीज्ड. नाउ PPC is shifted to right, shift to the right, PPC1. Now जो पॉइंट्स पहले अनअटेनेबल थे अब वो अटेनेबल बन चुके हैं. जैसे कि ये पॉइंट, आप देखिए ये पॉइंट PPC के राइट पे है. प्लीज चेक दिस पॉइंट इज टू द राइट ऑफ PPC. यस और नो? अब ये पॉइंट PPC1 के लेफ्ट में आ चुका है. दैट मीन्स जो पॉइंट पहले अनअटेनेबल था वो पॉइंट अब फुलर यूटिलाइजेशन, सॉरी अंडर यूटिलाइजेशन बन चुका है. एक पॉइंट पे आपको लगता था आप 80% भी नहीं ले सकते. दिस इज मैथ्स, दिस इज साइंस और दिस इज अकाउंट्स, दिस इज इकोनॉमिक्स. दोनों को पूरा टाइम देने के बाद भी आपको लगता था कि आप 80% नहीं ले सकते. इट इज़ अनअटेनेबल. आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, फोकस बढ़ाया, अपने टाइम ज़्यादा देना शुरू किया और अब आपके 90% आ सकते हैं एंड 80% इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज आपका मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ चुका है. और इसी तरीके से अगर दोनों के रिसोर्सेज कम हो जाए, रिसोर्सेज ऑफ गुड X and good Y decreases,
This is PPC, initial PPC. The maximum production of X is this, and the maximum production of Y is this, and the maximum potential production is this. रिसोर्सेस कम हो गए हैं पूरी इकोनॉमी के, X और Y के। जो पॉइंट्स पहले अटेनेबल थे वो अब अनअटेनेबल हो चुके हैं। PPC left, shift to the left to PPC 0. The resources of both goods increases and resources of both goods decreases simultaneously, एक ही टाइम पे। Page number 10, it refers to the situation when production of both commodities can be changed due to change in the resources of both commodities simultaneously, एक ही टाइम पे। ये दोनों फिगर बनाइए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में दोनों की इकट्ठी दूंगा। आई विल बी गिविंग एक्सप्लेनेशन टुगेदर। फिगर 1, फिगर 2। This is the diagram. Now this is diagram, and in diagram we have two figures, figure 1, figure 2. Speed up, draw the diagram. 30 sec. Write down PPC, दोनों का इकट्ठी एक्सप्लेनेशन है। PPC is the initial production possibility curve, is the initial production possibility curve, full stop. It represents the potential output of an economy. It represents the potential output of an economy, that is, when the resources are fully employed, that is, when the resources are fully employed, full stop. Due to increase in the resources of good X and good Y, due to increase in the resources of good X and good Y, PPC shift to the right to PPC 1. PPC shift to the right, upward भी लिख सकते हैं इसे हम। PPC shift to the right, अगर हम स्ट्रेट देखें तो वो राइट है, नीचे के एंगल की तरफ से देखें तो इट इज अपवर्ड, बोथ आर राइट। राइटवर्ड इज द बेटर वर्ड। PPC shifts to the right, full stop. Now an economy is at बेटर ऑफ पोजीशन। ये देखिए बेटर ऑफ मतलब पहले से अच्छा, पहले से बेटर सिचुएशन पे पहुंची है। बेटर ऑफ पोजीशन, full stop. Refer figure 1. Refer
Figure 1. When the resources of both the commodities, good X and good Y, when the resources of both the commodities, good X and good Y, decreases, then PPC will shift to the left to PPC 0. Then PPC will shift to the left to PPC 0. Full stop. The potential production of an economy has been reduced. The potential production of an economy has been reduced. Full stop. Full stop. Now the economy is at, this one, worse off position. Now the economy is at worse off position. Refer figure 2. डन। अब इससे रिलेटेड शिफ्टिंग रोटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम सभी क्वेश्चंस तो लिखाएंगे नहीं, मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करेंगे डिस्कस सारे। उससे पहले मैं आपको सारी कर्व्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको शिफ्टिंग रोटेशन के पॉइंट से क्लैरिटी आ जाए कि हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। अगर आप पॉइंट ए पर हैं, दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने रिसोर्सेज बेटर यूज करने लग गए, मींस आपके रिसोर्सेज बड़े नहीं हैं, रिसोर्सेज आपके वही हैं, आपके रिसोर्सेज एज इट इज उतने ही हैं, बट आप अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज करने लग गए हैं, आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज करने लगे हैं, तो आप पॉइंट ए से ऊपर की तरफ पीपीसी की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे, आप पीपीसी की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर इकोनॉमी के रिसोर्सेज बढ़ गए, अगर इकोनॉमी के रिसोर्सेज बढ़ गए हैं तो पीपीसी शिफ्ट करेगी राइटवर्ड, पीपीसी टू पीपीसी 1। हाँ, हम कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बात की बात है। जैसे हम पहले यहाँ पे थे,
आपके 60% मार्क्स आ रहे थे, आप यहाँ पर थे, आपका पोटेंशियल प्रोडक्शन 80% था। आपके 60 क्यों आ रहे थे? आप ध्यान नहीं दे रहे थे क्लास में, स्कूल में। आपके पेरेंट्स ने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगवा दी, आपका पोटेंशियल प्रोडक्शन बढ़ गया, 80 से आपके 90 आ सकते हैं, बट अभी भी आप फोकस नहीं कर रहे हो। इट रिमेन 60 to 70 है, अभी भी आप अंदर ही। पहले 80 आ सकते थे, अब 90 आ सकते हैं। पहले 60 आ रहे थे, अब 70 आ रहे हैं, बट है अभी भी अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर है रिसोर्सेज बढ़े हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ी है ये नहीं, वो बात की बात है। अगर इकोनॉमी के रिसोर्सेज कम हो जाए, ये आपने बनाना नहीं है, ये सब बनाया हुआ है, मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। अगर दोनों के रिसोर्सेज कम हो जाए, मतलब इकोनॉमी के रिसोर्सेज कम हो जाए, तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाती है। अगर रिसोर्सेज सिर्फ एक्स के चेंज हो रहे हैं, वाई के रिमेन्स इंटैक्ट, वाई रिसोर्सेज ऑफ वाई रिमेन इंटैक्ट, पीपीसी विल बी शिफ्टेड टू रोटेटेड टू पीपीसी 1 और पीपीसी 0 एंड दिस इज पीपीसी। और अगर सिर्फ वाई के रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं और एक्स के रिसोर्सेज इंटैक्ट हैं, सेम है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो हमने यही किया था, पीपीसी क्या होती है, उसकी स्लोप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, साथ में डायग्राम बनेगा, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, डिपेंड्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इकोनॉमिक वैल्यू अचीव्ड through the spread of education in the context of production possibility curve या production potential curve। अगर किसी इकोनॉमी में एडुकेशन स्प्रेड होनी शुरू हो गई, अगर किसी इकोनॉमी में एडुकेशन बढ़ रही है, तो इससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बताइए। एडुकेशन रिसोर्सेज को बढ़ाता है, एडुकेशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, वेलफेयर होगा, इनकम बढ़ेगी। सो किसी भी कंट्री का, टेक एन एग्जांपल इंडिया, 1947, 1950, 1980 में इंडिया की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब ये थी। अब इंडिया ने ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया है। ऐसा क्या हो गया? इंडिया में एडुकेशन स्प्रेड हुई है। पीपीसी शिफ्ट टू द राइट, लिखिए
spread of education ब्रैकेट में लिखिए हायर एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन, मेंशन नहीं है प्राइमरी है कि हायर है, मैं हायर मान रहा हूँ, स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन या एजुकेशन ब्रैकेट में हायर कॉमा नहीं आएगा, will increase the resources of an economy, will increase the resources of an economy and hence will increase the resources of an economy and hence PPC will shift to the right, PPC will shift to the right, full stop. अच्छा, ये अगर यहाँ प्राइमरी एजुकेशन होती, यू नो व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, तो हम ऐसे वर्क करते। लोग पहले अनपढ़ थे, अब वो पढ़े लिखे हो रहे हैं, हम अपने फुलर यूटिलाइजेशन पे पहुंच रहे हैं। यू आर गेटिंग? प्राइमरी एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं बढ़ाता, प्राइमरी एजुकेशन तो हमारी नेसेसिटी है, प्राइमरी एजुकेशन हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ाता, हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। हायर एजुकेशन 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhDs, डिप्लोमास, ये हमारे रिसोर्सेज बढ़ाता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एजुकेशन लिखे तो मैंने हायर एजुकेशन कंसिडर की है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? अनएम्प्लॉयमेंट से PPC पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे अफेक्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट से? कोई फर्क नहीं पड़ता, PPC इंटैक्ट वही रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा मतलब हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। लिखिए, unemployment refers to the situation of underutilization of resources, full stop. Thus it does not affect PPC of an economy. It does not affect PPC of an economy. Full stop. It is just a point inside the PPC. It is just the point inside the PPC. Full stop. यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में होता तो मैं ये डायग्राम बनाता और यहाँ लिखता दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हम यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, बट 1 मार्कर है तो डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? वी हैव अराउंड 10 questions, 3 marker, 4 marker, 1 marker left. In tomorrow's lecture we'll continue with the questions और अभी 2 टॉपिक्स और पेंडिंग हैं, उनमें से एक टॉपिक कल करेंगे। We'll do certain questions tomorrow and 1 topic. Bye bye, take care, God bless.